Hello, everybody. Assalamualaikum and very good evening. This is Dr. Kiran Hashmi once again from the platform of the Skills Education Consultancy. Before I say anything, I really want to apologize for having this gap internally of about few weeks. There were a number of problems that we were facing here in Karachi. We had electricity issues, excessive torrential rainfall, then we had internet connectivity issues, and then obviously COVID, and so many things are happening. So I couldn't continue with the webinars that I was having every week on Saturdays and Sundays. So from this week onwards, I will definitely try my level best to have our regular educational webinars that I started with you all in June. And we are definitely coming up with new ideas to share with you all and something which is productive. As the title suggests, skills, as usual, I'm always talking about skills that our students need, which our youth needs, our young generation needs, and how we can help them to become skill-based workforce for our country. उसी की लड़ी में आज मैंने एक और अपने स्टूडेंट को यहाँ बुलाया है जिनका नाम है शर्जील अहमद खान साहब शर्जील से मेरा जो एक एक्सपीरियंस है इट इज़ मेनली एज ए स्टूडेंट I taught him a lot of his courses that he was studying in one of the universities where I was teaching as faculty. From there I know and then some professional acquaintances through some publishing houses that I've been into. So Sharjeel, mashallah, say, to give you a little background, is a very talented person, mashallah, mashallah. Sharjeel is working in a publishing house in the capacity of a research and development head. He's also an editor himself. He's worked on a number of editorial projects. He keeps on searching for good people. He himself is an author, writes, reviews, gives feedback on different kind of writing material. So I thought it's important to invite Sharjeel today so that he can share some basic ideas with you all of how to be an editor. हमारी मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने पब्लिशिंग हाउस में कुछ अर्सा काम किया तो मुझे इस बात बहुत अच्छी तरह अंदाजा है हम किताबें लिखते वक्त क्योंकि जब मैं लिखती हूँ पीपल रियली डू नॉट नो व्हाट एडिटिंग इज ऑल अबाउट हियर हम एडिटिंग को समझते हैं कि ग्रामेटिकल एरर्स ठीक करना एडिटिंग है हम एडिटिंग को समझते हैं कि लोग फल सजा दें लेकिन एडिटिंग इज नॉट ओनली दैट एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एडिटर्स एंड स्पेसिफिकली प्रोफेशनल एडिटर्स there's a dilemma in Pakistan that we do not have any professional program that offers editing or help us to pursue editorial services as a part of our careers. तो उनके लिए जिन लोगों ने अपनी एक्सपीरियंस की बेसिस पर अपने आप को एडिटर्स के तौर पर मनवाया है शर्जील So I will now be handing over the webinar to Sharjeel. As always, everybody, it is a very insightful session because I know him and I know his work. That is why I'm requesting you, please invite others as well to attend this webinar today. Feel free to write your questions, your comments. We will be taking all your questions today. Maybe in between or at the end, we'll see how it goes. But please feel free to share what your concerns are. So over to you, Sharjeel. All right. Assalamu alaikum. Thank you so much, Dr. Kiran. And first of all, I would appreciate your efforts for continuing these webinars, alhamdulillah. And before beginning to getting into the core of the discussion today on how to become an editor, I would first agree with whatever you have said in the beginning. और आपने जितनी बातें अभी शुरू में की हैं मैं सबसे पहले तो उससे अग्री करूंगा कि यकीनी तौर पे एडिटर बनना और एडिटिंग से रिलेटेड क्वालिफिकेशन रेलेवेंट क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ हमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नज़र नहीं आता, ऐसी डिग्रीज नज़र नहीं आती, ऐसी क्वालिफिकेशन नज़र नहीं आती जो हमें हेल्प आउट करें एक प्रोफेशनल एडिटर बनने में। तो इसके लिए भी हमें जाहिर सी बातें बाहर की तरफ देखना पड़ता है और अब्रॉड की तरफ देखना पड़ता है, उनसे इसमें हेल्प लेनी पड़ती है, कोर्सेज करने पड़ते हैं। तो इनफैक्ट मैं आपसे इस बात पर बिल्कुल अग्री करूंगा, ये जो प्रॉब्लम्स हैं इस फील्ड में लेकर, तो बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन में इनविटेशन के लिए। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इस मुख्तसर से वक्त में, क्योंकि वक्त बहुत कम है, और मैं इनिशियली आई वुड लाइक टू हैव अ डिस्क्लेमर इन द बिगनिंग दैट दिस 1 hour session is not enough to train you to become an editor, or in fact for you to learn to become an editor, this 1 hour session is not enough. तो ये वक्त इतना उसके लिए काफ़ी तो नहीं है, बट ये ज़रूर है कि मैं अपने तौर पे कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने रख सकूँ अपने तजुर्बे की रोशनी में, और
उस तजुर्बे के नतीजे में जो परसेप्शंस बने हमारे इस फील्ड को लेकर और इस काम को लेकर, उसकी रोशनी में आपके सामने कुछ चीजें शेयर करूं ताकि एक वे आपके लिए ओपन हो. दिस विल इन फैक्ट ओपन अप द वे फॉर ऑल ऑफ यू टू वर्क ऑन योरसेल्फ टू बिकम and get into this professional field. So let's have a look. I have pointed out few things for all of you, and I'm going to share that stuff with you right now. I hope now you can see my screen. So this is the theme of today's program, how to be an editor. So let's start from what I have said in the beginning. That is a disclaimer that of course this 1 hour is not enough. So I will try to make the things clear for you to open up the ways for you, inshallah. So first of all, we need to understand that the context of today's program and today's session is editing, and I would focus on language editing. क्योंकि जब जब बात होती है एडिटर होने की तो आमतौर पे जो उसका कॉन्टेक्स्ट होता है वो लैंग्वेज एडिटिंग का होता है. तो हम बुनियादी तौर पे बात आज करने जा रहे हैं कि हाउ टू बिकम अ लैंग्वेज एडिटर. ठीक है, अब चाहे वो इंग्लिश में हो, उर्दू में हो या किसी और जबान में. तो हमारा कॉन्टेक्स्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो आप एज एन एडिटर सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इसमें एक एज अ प्रोफेशनल आप आने चाहते हैं आगे कि आप भी लैंग्वेज एडिटर कहलाएं, तो फिर क्या आपके लिए रास्ता होगा पॉसिबल जिसे आप इख्तियार करके इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द व्हाई. सबसे पहली बात यही है कि किसी भी प्रोफेशन का इंतखाब करते वक्त हमें ये वाज़ेह होना चाहिए कि हम क्यों जाना चाह रहे हैं उसमें और ऐसी कौन सी अट्रैक्शन है और क्या करियर की पॉसिबिलिटीज उसमें हमें नजर आती हैं कि हम उसमें मेहनत करें. सो द फर्स्ट थिंग इज एंड द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अंडर द व्हाई टू बिकम एडिटर इज दैट दिस फील्ड व्हाट आई बिलीव इज एवरग्रीन प्रोफेशन. तो ये जो एडिटर की जो फील्ड है और ये जो जॉब है, मुझे तो ऐसा ही लगा इस पूरे अरसे में काम करते हुए, तकरीबन 8 से 10 साल इस फील्ड में हो गए एज एन एडिटर काम करते हुए, और एज ए राइटर तो तकरीबन स्कूल लाइफ से ही इस फील्ड से एक ताल्लुक रहा राइटिंग की बुनियाद पर. तो स्कूल लाइफ से ही एक शौक था पढ़ने का, किताबें पढ़ने का, बुक फॉर्म जिसको आमतौर पे कहा जाता है, वो हम इब्तिदाई उम्र से ही थे. तो इस लिहाज से तो बहुत पुराना ताल्लुक इस फील्ड से है. लेकिन ऑफ कोर्स प्रोफेशनली अगर आप देखें तो तकरीबन 8-10 साल मुझे इस फील्ड में काम करते हुए हो गए प्रोफेशनल डेजिग्नेशन के साथ. तो पहली चीज जो मैं समझता हूँ कि व्हाई शुड यू चूज टू बिकम एन एडिटर इज दैट दिस इज एन एवरग्रीन प्रोफेशन. व्हाई? वजह यह है कि देखें, किताब और तहरीर, अब तहरीर किताब की सूरत में भी हो सकती है, एक आर्टिकल की सूरत में भी हो सकती है, एक पम्फलेट की सूरत में भी हो सकती है, एक ब्लॉग की सूरत में भी हो सकती है, एक जनाबे आली एक ऐसे की सूरत में भी हो सकती है, ठीक है, एक मैगजीन की सूरत में भी हो सकती है. तो जो भी तहरीर है, ये जो किताब है, ये कभी डिसअपियर नहीं होगी. एक आर्गुमेंट एक ये डेवलप किया जाता है कि जनाब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही है तो अब किताबें कौन पढ़ेगा. तो देखें, किताबें अपनी फॉर्म बदल रही वक्त के साथ साथ, किताब खत्म नहीं हो रही. अब आज हम किताब को अगर आप देखें तो ई बुक्स की फॉर्म में आपके सामने किताब मौजूद है. तो ई बुक्स की एक फॉर्म है ना, किताब तो अपनी जगह मौजूद है, ऑनलाइन आपके पास कंटेंट मौजूद है, तो वहां भी किताबें मौजूद है. तो किताब पर अगर आप गौर करें तो किताब कभी खत्म नहीं होगी बल्कि अपनी फॉर्म बदलेगी. लिहाजा चूंकि एक ऐसी चीज जो कभी खत्म नहीं होने वाली, जो हमेशा चलती रहेगी आगे भी, उसके साथ हमारा प्रोफेशन जुड़ा है. एडिटिंग का जो प्रोफेशन जुड़ा है हमारा, वो एक ऐसी चीज के साथ जुड़ा है जो कभी खत्म नहीं होने वाली, मुस्तकिल चलती रहनी है. लिहाजा एक चीज जो मुस्तकिल आगे चलती रहेगी, सिर्फ अपने फॉर्म बदल रही है, लिहाजा उससे रिलेटेड हमारी जो एक जॉब है वो कैसे खत्म हो सकती है. लिहाजा एडिटर की भी जॉब कभी खत्म नहीं होनी है, इसकी फॉर्म बदलेगी. टेक्नोलॉजी आने के बाद से इसकी रिक्वायरमेंट्स बदल सकती हैं कि अब आपको टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके एडिटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करना आनी चाहिए. बट ऑफ कोर्स एडिटर की जॉब कभी खत्म होने वाली नहीं है. तो अब अगर आप देखें कि इसके बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं इस फील्ड में उतरने के बाद. आप बुक पब्लिशिंग कंपनीज के साथ काम कर सकते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा स्कोप इनके पास होता है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जो बुक पब्लिशिंग कंपनीज के एडिटोरियल डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहां इसका एक स्कोप आपके सामने मौजूद है. कई आपके मुल्क में पब्लिशिंग हाउसेज हैं और दिन ब दिन बढ़ रहे हैं क्योंकि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है. कमर्शियल एस्पेक्ट से भी दुनिया को नजर आता है, लिहाजा इसमें जॉब्स के चांसेस बहुत ज्यादा हैं
और ये बहुत ज्यादा इसमें स्कोप आपको पब्लिशिंग कंपनीज के अंदर भी नजर आता है। दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आप अच्छे एडिटर बन जाते हैं तो दूसरा आपके पास ऑप्शन मीडिया हाउसेस का है, क्योंकि वहां पर अखबारात पे काम हो रहा होता है, न्यूज पे काम हो रहा होता है, आर्टिकल्स पे काम हो रहा होता है, और जो बहुत सारी मीडिया की रिक्वायरमेंट्स है, जहां जहां कंटेंट तैयार होता है वहां वहां एडिटर खड़ा होता है। तो समझे जहां राइटिंग का काम हो रहा है, एडिटर का काम वहां पर साथ साथ आता है, क्योंकि राइटर के काम पर जो काम करता है वो एडिटर करता है। राइटर के काम को दुनिया के लिए प्रेजेंटेबल बनाने वाला जो शख्स है बैक एंड पे, जो एक आप जिसको कहते हैं कि जो गुमनाम सिपाही है एक तरह से, जो फ्रंट पे शायद आपको नजर नहीं आता, क्योंकि फ्रंट पे ज्यादातर राइटर्स के नाम आ रहे होते हैं। तो राइटर की पहचान कराने वाला, उसके काम को इम्प्रूव करने वाला और दुनिया के सामने प्रेजेंटेबल करने वाला जो फर्द होता है वो एडिटर होता है। लिहाजा उसकी अहमियत कभी खत्म नहीं हो सकती और कम नहीं हो सकती। तीसरा ऑप्शन आपके पास एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का होता है। वहां भी चूंकि कंटेंट क्रिएट होता है, लिहाजा कंटेंट वहां डेवलप होता है, तो वहां भी एडिटर्स की जरूरत होती है। वो और बात है कि वहां एडिटोरियल जॉब की जो फॉर्म है वो डिफरेंट है। कॉपी एडिटिंग स्किल्स, कॉन्सेप्ट राइटिंग स्किल्स, इस तरह के काम वहां पर ज्यादा अहमियत रखते हैं। चौथी आपके पास जो एक बहुत बड़ी एक इसके लिए अपॉर्चुनिटी है, उसे हम कहते हैं फ्रीलांस मार्केट। फ्रीलांस मार्केट के अंदर आपके पास पूरी दुनिया के दरवाजे खुले होते हैं, इंटरनेशनल कंपनीज के लिए, वेबसाइट्स के लिए और पब्लिशर्स के लिए, दीगर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए दुनिया भर से फ्रीलांस काम आपके लिए एडिटर का अवेलेबल होता है, जो तलाश कर रहे होते हैं कि हमारे रॉ मटेरियल को, यानी वो राइटअप जो वो लोग तैयार करते हैं रॉ फॉर्म में होता है, उसको इनहेंस कोई करके दे, हमें उसको रिफाइन करके दे, उसकी लैंग्वेज एडिटिंग करके दे। तो ये काम फ्रीलांस मार्केट में अवेलेबल होता है। तो अगर आप अपने एज अ फ्रीलांसर भी अपने आप को आगे लेके जाना चाहते हैं, सो यू कैन इवन सर्व एज अ फ्रीलांस एडिटर एंड यू हैव multiple opportunities in this regard, and you can put your own price there and you can earn at as per own your will. जाहिर सी बात है इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, काफी वक्त लगता है इसमें, अपनी स्किल्स आपको एडिटोरियल स्किल्स पैदा करनी पड़ती हैं और अपनी क्रेडिबिलिटी काम के जरिए अपने नाम को मनवाना पड़ता है, तब जाकर आपका फिर काम चलना शुरू हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि इस फील्ड में मेहनत करने का फायदा है और इसका अच्छा खासा रिटर्न और इन्वेस्टमेंट है, जिसकी पहली एग्जांपल मैंने आपको बता दी कि ये कई ऑप्शंस आपके पास मौजूद होते हैं जिसके जरिए आप अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा बड़ा रीजन जो इस फील्ड में आने का वो ये है कि देखें कि आप क्यों इस फील्ड का इंतखाब करें। दूसरा बड़ा रीजन ये है कि आमतौर पर जितने आपके पास प्रोफेशंस हैं उसमें लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। यानी यूं समझ लें कि हर कोई, जिसको कहते हैं ना एवरीबडी इज जंपिंग इनटू द प्रोफेशन, और ओवर एक्यूमुलेटेड हो जाना कि इस प्रोफेशन का एमबीए है तो जनाब हर जगह फिर एमबीए हो रहा है, हर बंदा बिजनेस मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहा है, कॉमर्स की डिमांड आती है तो हर कोई उसमें, तो हर फील्ड को लेकर एक भेड़ चाल की कैफियत होती है। बट अगर आप इस फील्ड को देखें तो इसमें लोग कम हैं, उतने ज्यादा नहीं है जितना और फील्ड्स के अंदर है, तो लेस एक्यूमुलेटेड प्रोफेशन है। लिहाजा इसमें जो लोग आते हैं उनकी कदर ज्यादा होगी, क्योंकि जहां अफरादी कुव्वत की कमी होती है वहां ऑफ कोर्स डिमांड भी ज्यादा होती है। चूंकि एडिटर्स, ऐसा नहीं होता कि हर पत्थर के नीचे एक एडिटर आपको मिल जाए, नहीं, कम होते हैं, रेयर होते हैं। लिहाजा रेयर होने की वजह से उनकी वैल्यू ज्यादा है अगर वो अपनी वैल्यू मनवाना चाहे तो। सो दैट्स व्हाई नॉट ऑल कैन जंप इनटू दिस प्रोफेशन बिकॉज द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस आर ऑर्गेनिक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको समझना जरूरी है कि इस फील्ड में इनऑर्गेनिक कुछ नहीं है, मतलब नकली आप होकर नहीं चल सकते, आपको असली होना पड़ेगा, ऑर्गेनिक होना पड़ेगा, और आपको वाकई अपने अंदर स्किल पैदा करनी पड़ेगी, क्योंकि लैंग्वेज की, लिखने की, पढ़ने की जो चीज है ना, ये ओरिजिनल स्किल्स होती हैं। ये सिर्फ ऊपर से बना सवार के कुछ नहीं हो सकता, इसके लिए रियल स्किल्स आपको चाहिए होती है। दैट्स वाई वो रेयर होती है और हर कोई इतनी मेहनत करना नहीं चाहता। दैट्स वाई कोई उसमें आता नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत है। तो इस बिना पर कि चूंकि ये लेस एक्यूमुलेटेड प्रोफेशन है, ये फोरकास्ट कर सकते हैं कि इसका रिटर्न और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। तो ये दूसरी बड़ी इसकी वजह है कि जिसमें जिस वजह से आपको आना चाहिए। तो वी हैव गुड स्कोप इन दिस फील्ड। अच्छा, तीसरी और आखिरी चीज जो यहाँ मैं डिस्कस करना चाहूंगा वाई के तनाजुर में, वो ये है कि फ्री एंड डाइवर्सिफाइड लर्निंग। आप जब इस फील्ड में काम करते हैं एज एन एडिटर, अपने आप को आप आगे बढ़ाते हैं, तो एक सबसे बड़ा फायदा आपका ये होता है इसमें कि आपको मुख्तलिफ राइटअप्स आपके सामने आ रहे होते हैं और वो मुख्तलिफ लोगों ने लिखे होते हैं और वो किसी फील्ड से रिलेट करते हैं, तो मुफ्त में आपकी लर्निंग होती है। काम तो आपका हो जाता है क्योंकि आपको किसी की राइटिंग पे काम करना है एज एन एडिटर,
तो वो काम आपकी जॉब हो गई, लेकिन उसके साथ एक फ्री लर्निंग आपकी हो रही होती है। अलग अलग तरह का टेस्ट आपके सामने आता है, अलग अलग तरह का राइटअप आपके सामने आता है, वो खास फील्ड के अंदर होता है, उसके साथ साथ आपकी टेक्निकल नॉलेज बढ़ रही होती है, मुफ्त की आपकी लर्निंग हो रही होती है। तो ये काम भी है और फ्री की लर्निंग भी है और डाइवर्सिफाइड है, यानी मुख्तलिफ एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आने वाली आपके पास लर्निंग है। तो जैसे जैसे आप किसी की राइटिंग को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, तो साथ साथ वो चूंकि आप पढ़ रहे होते हैं, लिहाजा उस फील्ड की नॉलेज भी आपकी एनहांस हो रही होती है, और आप एक अच्छे मतलब एक कंटेंट आपके पास वक्त के साथ साथ आपके पास आना शुरू हो जाता है, और आपकी जो कंटेंट नॉलेज है ना मुख्तलिफ फील्ड्स की, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो यहाँ तक हमने अभी बात की है कि व्हाई शुड वी बिकम एन एडिटर, और क्या इसमें हमारे लिए अट्रैक्शन मौजूद है। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि डॉक्टर किरण अगर इस पर कोई बात करना चाहे प्लीज, यहाँ तक जो भी हमने बात की। Thank you, Shajib. I think this was a good reference, good prelude, good introduction to what editing is all about. मुझे जो एक चीज़ आपकी अच्छी लगी कि आपने 3-4 चीज़ों के बारे में बात की कि सिर्फ बुक एडिटिंग नहीं होती है, हमारे पास फ्रीलांस एडिटिंग सर्विसेज भी होती है, और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अब हमें फ्रीलांस राइटिंग के लिए, वेबसाइट्स के लिए, कंटेंट डेवलपमेंट के लिए, कंटेंट मटेरियल के लिए उनको अच्छे एडिटर्स की ज़रूरत होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे एडिटर्स को जॉब इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि दे रियली डोंट हैव द स्किल ऑफ एडिटिंग। तो ये एक चीज़ है जो अब मैं चाहूँगी कि आप इसको हाईलाइट करें। अच्छा, बिफोर वी कुड एक्चुअली कम टू द सेकंड पॉइंट वेयर वी विल बेसिकली टॉकिंग अबाउट हाउ टू बी एन एडिटर, देयर आर 2 questions. There's one question basically which I would like you to answer. Please share the potentials of OETs for editors. तो ये एक क्वेश्चन है जो मुनीर पूछ रहे हैं, if you would like to share. And everybody, please feel free to write your questions because I'm telling you this is going to be a very, very important session, specifically for those who are into writing. आप टेक्स्ट बुक राइटिंग करते हैं, आप जर्नल राइटिंग करते हैं, आप क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, आप रिसर्च राइटिंग करते हैं. इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न हाउ टू डू एडिटिंग. दैट्स अ स्किल, राइट? सो Shajib, आप इस क्वेश्चन का अगर आंसर प्लीज. Yeah, sure. Please explain potentials of Yeah. editing. Brother Munir, I think, have asked the question, right? The potential Yes. of editing in overseas employment promoters. What does it exactly mean by OEP? Overseas की बात करना चाह रहे हैं? Open education practices. Open education practices. Open education practices. Right, right. Thank you, thank you. देखिए, बेसिकली चूंकि एडिटिंग का जो काम है उसका जो स्कोप है अगर आप समझें, तो उसमें चूंकि हर किस्म के राइटअप पे आप काम करते हैं, तो अब चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आपके पास राइटअप आ रहा है, ठीक है, ओपन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस की बात करें या किसी और प्लेटफॉर्म की बात करें, चूंकि वो राइटअप होगा जो आपके पास आएगा और राइटअप को इनहेंस करना एडिटर का काम है, तो बेसिकली इसका जो पोटेंशियल है तो वो तो हमेशा से जो है बरकरार रहेगा। लिहाजा मैं अपने तौर पे समझता हूँ कि आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में एडिटर की बात कर लें, एडिटर का जो उसकी जो वैल्यू है वो हर कॉन्टेक्स्ट में कीमती, किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। आपका अपना प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट है, मेरा अपना प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट है, जिस भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप बात करें, जहां भी राइटअप प्रोड्यूस हो रहा है वहां पर एडिटर की जरूरत लाजमी और मलजूम होगी। और इवन ये कि जब इंटरनेशनल पब्लिकेशंस की तरफ आप जाते हैं और रिसर्च जर्नल्स की तरफ जाते हैं, तो डॉक्टर किरण खुद उसका तजुर्बा रखती हैं कि इवन के रिसर्च जर्नल्स के अंदर भी एडिटर्स की बहुत है, बल्कि उनके बगैर तो काम ही नहीं है, क्योंकि वो आर्टिकल जो आता है बहुत रॉ फॉर्म के अंदर होता है और उसको इम्प्रूव करना और रिफाइन करना, स्टैंडर्ड पर लेकर आना एडिटर का काम होता है। तो आई थिंक कि हर कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसके लिए पोटेंशियल और उसकी वैल्यू मौजूद है। जी, एक और सवाल है। And I think it's a very interesting question. It is कि what impact does it have on teachers? हम टीचर्स को एडिटिंग सीखने की क्या जरूरत है? हम तो प्रोफेशनल ऑथर्स नहीं हैं, right? So I think this is something a very interesting question, Nauzad. Thank you very much for asking this. बहुत अहम सवाल है, यकीनी तौर पे अहम इसलिए है कि देखें, हम शायद ये समझ बैठे हैं कि जो टीचर का जो स्कोप ऑफ वर्क है वो सिर्फ पढ़ाना है। तो पहली बात तो इस नैरो स्कोप की वजह से हम उस पढ़ाने से बाहर कभी आ नहीं पाते, हम कभी ट्रेनर नहीं बन पाते, हम कभी मेंटोर नहीं बन पाते, जिंदगी भर हम टीचर रह जाते हैं। तो मैं समझता हूँ खुद डॉक्टर किरण भी मौजूद है यहाँ पर, मैं भी मौजूद हूँ, हम सब ने अपना जो करियर का आगाज किया है वो पढ़ाने से किया है, बतौर उस्ताद ही हमने काम किया है। और एज ए टीचर मेरा अपना करियर का जो आगाज हुआ, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं एडिटिंग करूंगा किसी लाइफ के हिस्से में, एज ए टीचर ही मैंने अपने करियर का आगाज किया। लेकिन करते करते किताबों से चूंकि ताल्लुक था, देखिए टीचर का तो ताल्लुक किताब से है ना, तो किताब एक राइटअप है,
एक तहरीर है, उस तहरीर के अंदर बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो वही टीचर आइडेंटिफाई कर सकता है जिसके अंदर ये स्किल होगी कि वो राइटिंग के साथ डिटेल्स पर तवज्जो रखने की अपने अंदर एक सलाहियत रखता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो राइटअप के साथ लगाव आपको मुस्तकबिल में एडिटिंग की तरफ लेकर आ जाता है। मुझे खुद याद पड़ता है कि जब हम लेसन प्लान्स बनाया करते थे और जो राइटअप टेक्स्ट बुक्स का होता था उसको पढ़ते थे, उसको एक्सप्लेन करते थे, दिल करता था मैं खुद भी लिख लूँ एक मजमून, यानी क्यों ना एक लेसन मैं खुद तैयार कर लूँ। तो 2-3 बार जब लेसन तैयार किए तो समझ में आया भाई ये स्किल भी अल्लाह ने हमारे अंदर रखी है कि हम इससे आगे शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एडिटिंग का इस तरह हम पे इम्पैक्ट पड़ सकता है कि करियर ट्रांजिशन में आपको ये हेल्प कर सकता है। यू कैन बी अ टीचर एज वेल एज एन एडिटर एज वेल एज अ राइटर। मुमकिन है कि आप बैक वक्त अपने प्रोफेशन के अंदर एक ओवरआर्चिंग अपना करियर बनाएं, यानी आप पढ़ाते भी हैं, आप लिखते भी हैं, आप एडिटिंग भी करते हैं। क्योंकि अब ये दौर ऐसा है कि आप एक फील्ड तक महदूद नहीं रह सकते कि सिर्फ आपने पढ़ाना ही है। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को इस तरफ मोल्ड करें तो आपके अंदर दूसरी स्किल पैदा होगी। आप एक वक्त में पढ़ा रहे होंगे, एक वक्त में आप किताब पे काम करेंगे, एक वक्त में आप एडिटिंग भी करेंगे। तो आई थिंक इससे आपकी टीचिंग भी अच्छी होगी, क्योंकि टीचिंग में जब आप मदद लेते हैं टेक्स्ट बुक से तो वहां पर कंटेंट की मदद से आप पढ़ा रहे होते हैं। तो जब आपकी एडिटिंग स्किल्स अच्छी होंगी तो आपका लेसन प्लान अच्छा बनेगा, आपके राइटअप्स अच्छे बनेंगे, आपकी चेकिंग स्किल्स अच्छी होंगी। स्टूडेंट का काम आपको चेक करना होता है, वो बहुत अच्छे से चेक कर पाएंगे, आपके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो स्किल है आपकी ओवरऑल पूरी पर्सनैलिटी पे और पूरे प्रोफेशन पे असर डालेगी। Right. I think, thank you. So Okay. can we move? There are just two more comments, Shajid, which I Yeah, really sure. want you to have a look at before we move on to the other part. Sure, sure, sure. Okay. Uh, Sabrina is saying thoughtful discussion, so thank you very Thank much, you. Sabrina. Thank you. This is really appreciated that you are liking it. Now there's another one. Okay. Munir again is asking. Munir, by the way, let me introduce you. He is Dr. Munir Musa, a Thank renowned you. name, I can say, very critical in his own field of education, very good teacher. So Munir is asking Mashallah. that I request you to shed light. I'm honored to have this question. I'm honored. Yes, yes. And it's a very good question, by the way, Munir. Thank you, Dr. Munir. So, Shajid, over to you. Yeah. Before moving on, I would like to have shed light on ethical considerations also. There is one common theme that we have, academic dishonesty. तो वो तो जाहिर सी बात है, हम जो फील्ड में लोग हैं वो आई होप अच्छी तरीके से समझते हैं। एकेडमिक डिसइंटीग्रिटी भी जी बिल्कुल, एकेडमिक डिसइंटीग्रिटी, डिसऑनेस्टी, प्लेजरिज्म, ये सारी चीज़ें हैं। तो इवन एडिटिंग की अगर आप बात करें तो जब आपने किसी के राइटअप को एडिट किया है और उसको एनहेंस किया है तो ऑफ कोर्स वहाँ पर आप मुमकिन है किसी सॉफ्टवेयर से मदद ले रहे हो। तो इसमें ये बड़ा ज़रूरी है कि जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो आप कहीं राइटअप अपना डालें और उसको इम्प्रूव करके दे दें। तो मेरा तो अपना तजुर्बा ये रहा है कि अगर कोई इवन सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है तो उसका रिजल्ट कोई खातिर आता नहीं है, क्योंकि मशीन की अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट से बिल्कुल दूर होती है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो एडिटर के लिए डिसऑनेस्टी या जो एथिकल कंसिडरेशन की आप बात करें, मैं समझता हूँ अगर वो सॉफ्टवेयर की हेल्प ले रहा है तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप खुद काम करें, आप उसके कॉन्टेक्स्ट को समझें, आप बेहतर समझ सकते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात चलती आ रही है। मशीन इन जज्बात से खाली है, मशीन उस कॉन्टेक्स्ट से बहुत दूर है, इसलिए इंसान की अहमियत अपनी जगह हमेशा बरकरार रहेगी। तो यस, पॉसिबिलिटी है कि लोग इसके अंदर एथिकली डिसऑनेस्टी की प्रैक्टिसेस करते हो और मशीन्स को यूज करते हो, सॉफ्टवेयर को यूज करते हो, जो कि नहीं करना चाहिए। लेकिन ज्यादातर इसमें चांस बनता नहीं है इतना कोई डिसइंटीग्रिटी का या डिसऑनेस्टी का। मैं नहीं समझता इसमें कोई इतना खास एथिकल इश्यूज एडिटिंग में आते हैं, क्योंकि इसमें कॉपी पेस्ट का ज्यादा काम है नहीं। किसी के राइटअप के ऊपर आपने काम करना है और आपको अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करके उसको इम्प्रूव करना है। हाँ, अगर कोई मशीन इस्तेमाल करता है, कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है, तो वो किसी ना किसी फॉर्म के अंदर डिसऑनेस्टी में आ सकता है। तो डॉक्टर किरण, कैन आई मूव फॉरवर्ड? मैं आगे बढ़ूं क्योंकि वक्त भी कम है। Yes, let's move to the second part. All right, everybody. Now, second part basically is how to be an editor. Yeah, so Shajid exactly. is now going to share some very insightful, important, enriching points for people who are aspiring to be editors. So please feel free to share your comments and queries, whatever you feel. Please share here. I'll post the questions to Shajid and we'll definitely be giving the answers. So Shajid, over to you now. Thank you. Thank you. All right. So now let's have a look at the second part of this session.
Now we are going to discuss few things about how to become an editor. To become an editor, the first thing that you need to understand is choosing the route. आपने रास्ता कौन सा पकड़ना है. सबसे पहली चीज हमने तय करना है कि हमारा रूट क्या होगा, राइट. सो वी हैव टू पॉसिबल रूट्स. पहला जो एक पॉसिबल रूट हमारे पास है उसे हम कहते हैं फॉर्मल रूट. ठीक है. अच्छा, फॉर्मल रूट में आपके पास ये होगा कि जिस तरह किसी भी फील्ड में एंटर होने के लिए आपको प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन चाहिए होती है. आप किसी खास सर्टेन फील्ड के अंदर मास्टर्स करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं और हायर क्वालिफिकेशन की तरफ जाते हैं. तो इस तरह इसमें भी है कि अगर आपने एडिटर बनना है और आप एक फॉर्मल रूट को इख्तियार करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप जर्नलिज्म में आप कोई डिग्री परसू करें, मास्टर्स करें जर्नलिज्म के अंदर, और इससे जर्नलिज्म से रिलेटेड कोई आप सर्टिफिकेशन करें किसी अच्छे इदारे से. गवर्नमेंट के इदारे मौजूद हैं और मास कम्युनिकेशन में आप डिग्री परसू कर सकते हैं. और इसके साथ साथ लैंग्वेज एंड लिटरेचर के अंदर आप मास्टर्स कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के अंदर. वो आपको बहुत रेलेवेंट डिग्री होगी इस फील्ड में आने के लिए. और फिर साथ साथ आपको दूसरा काम इंटर्नशिप. आपको किसी पब्लिशिंग कंपनी में एज इंटर्नी काम करना होगा, या आप किसी न्यूज़पेपर एजेंसी में, किसी मीडिया हाउस में, किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में आपको कुछ वक्त के लिए 6 महीने 1 साल इंटर्नशिप करनी होगी. तो एक आपकी डिग्री आपके पास होगी मास कम्युनिकेशन में या जर्नलिज्म में या लैंग्वेज एंड लिटरेचर के अंदर, और फिर साथ में आप के पास 6 महीने का या 1 महीने की इंटर्नशिप हो. तो एक फॉर्मल रूट होगा आपके लिए एज एन एडिटर इस फील्ड में उतरने का. अच्छा, दूसरा जो आपके पास ऑप्शन है, दूसरा जो आपके पास रूट है जो हमने तजुर्बे से देखा, वो इनफॉर्मल रूट है. इनफॉर्मल रूट के अंदर आपको 2 चीज़ें चाहिए होती है. नंबर 1 एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी यू विल हैव टू लर्न बाय एक्सपीरियंस, और दूसरा ये कि आपका पोर्टफोलियो. अच्छा, मेरा अपना जो मैंने ऑब्जर्व किया, आई होप तकरीबन और भी लोग इससे इत्तेफाक करेंगे, कि मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द एडिटर्स दे हैव कम इनटू द फील्ड, द पीपल आई नो वेरी वेल, दे हैव कम इनटू द फील्ड थ्रू इनफॉर्मल रूट. मतलब उनका किताबों के साथ लगाव था, लिखने की उनको आदत थी, और उन्होंने पहले से कुछ लिख रखा था, उनकी किताबें शाया हुई थी, उन्होंने पहले से कुछ काम कर रखा था. तो उस काम की बुनियाद पर वो फील्ड में आ गए अपना पोर्टफोलियो लेके. फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है कि जब मैंने कंपनी ज्वाइन की, पब्लिशिंग कंपनी ज्वाइन की, तो मेरे पास इस से रेलिवेंट कोई डिग्री नहीं थी, एडिटिंग से रेलिवेंट कोई डिग्री नहीं थी, बल्कि मेरी पब्लिकेशंस थी. उस वक्त में मेरी कोई 3-4 बुक्स जो थी वो शाया हो चुकी थी इंग्लिश में और उर्दू में, और वो काम मेरा मौजूद था. ट्रांसलेशन का मुझे शुरू से शौक था, मेरी ट्रांसलेटेड किताबें कुछ अवेलेबल थी उस वक्त, वो मैं लेकर पहुंचा था ड्यूरिंग द इंटरव्यू. तो उस चीज़ को बहुत अहमियत दी गई. तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो फॉर्मल रूट तो है अपनी जगह पर, अगर कोई इख्तियार करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, बट इनफॉर्मल रूट जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल देखा गया है इस फील्ड के अंदर, कि लोगों का किताबों के साथ लगाव था, लिखने की उनको आदत थी, पहले से कुछ मज़ामीन उनके शाया हो चुके थे मुख्तलिफ मैगजीन्स के अंदर, न्यूज़पेपर्स के अंदर, कुछ बुकलेट्स उन्होंने लिख रखे थे पहले से, तो उन्होंने काफ़ी मदद की इस फील्ड में उतरने की. तो अगर आप इस तरह से आगाज़ करना चाहें और आज से कुछ अपना काम शुरू कर दें, लिखना शुरू करें, उसको मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में भेजें, कुछ चीज़ें आपकी जमा हो जाएं, तो वो जो आपका पोर्टफोलियो होगा मुख्तलिफ पम्फलेट्स की सूरत में, बुकलेट्स की सूरत में, मैगजीन्स के आर्टिकल्स की सूरत में, तो ये सारी चीज़ें आपका जो पोर्टफोलियो है आपको हेल्प आउट करेगा आपकी जॉब में भी और आपको एडिटर के तौर पे आगे लेके जाने में. तो ये एक इनफॉर्मल रूट है जो मैं समझता हूँ ज़्यादा प्रैक्टिकल है एज कम्पेयर टू द फॉर्मल रूट. अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने एज एन एडिटर अपने अंदर कुछ क्वालिटीज़ पैदा करनी है. उन क्वालिटीज़ के साथ आप एडिटर बन सकते हैं और इस फील्ड में आ सकते हैं, और वो कुछ स्किल्स भी हैं साथ साथ जो अपने अंदर आपको पैदा करनी होगी. तो सबसे पहली जो प्राइम क्वालिटी है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी इज ऑफ कोर्स अबाउट द पैशन ऑफ रीडिंग. देखिए, हम में से जितने भी लोग हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो इससे इनकार नहीं कर सकते कि हम सब का उम्र के एक हिस्से में ख़ास लगाव और ताल्लुक रहा रीडिंग के साथ. मतलब जो रीडिंग की तरफ नहीं आ सकता वो कभी एडिटर तो सवाल ही पैदा नहीं होता उसके बनने का, राइटर भी बनने का सवाल नहीं पैदा हो सकता. तो इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड राइटर यू विल हैव टू बी एन एक्सीलेंट रीडर. जिस तरह हम कहते हैं ना कि इन ऑर्डर टू बी अ गुड स्पीकर यू विल हैव टू बी एक्सीलेंट लिसनर. तो इसी तरीके से बेहतरीन लिखारी बनने के लिए अच्छा कारी होना जरूरी है. जब तक अच्छा कारी ना होगा वो बेहतरीन लिखारी कभी नहीं बन सकता.
बेशक, तो ये ये बहुत अच्छी बात। इंपॉर्टेंट चीज है। थैंक यू मैम। तो रीडिंग का पैशन ऐसा है, मुझे याद पड़ता है कि मैं जब स्कूल गोइंग था तो उस वक्त में भी हमारे घर में कुछ नॉवेल्स आया करते थे, उस वक्त से उर्दू में हुआ करते थे, तो मैं सोने से पहले वो मैं लेके बैठता था और वो साइड में मैं पढ़ता रहता था, पढ़ते पढ़ते सो जाया करता था। और मुझे याद पड़ता है वो मेरे अंकल जो थे उनसे पहले वो नॉवेल मैं फिनिश कर चुका होता था, वो जब ला के रखते थे। तो एक एक आदत और एक जो चाहत राइटिंग के साथ आपको लग जाती है ना, वो बुक वर्म जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि उस वक्त से ही मैं इन चीजों पर गौर करता था कि ये क्यों यहाँ पर एक इन्होंने दो कॉमे क्यों लगा दिए, ये अगली लाइन में क्यों ले गए, ये हेडिंग इस तरह क्यों है, यू मतलब कुछ दिमाग में चीजें आना शुरू, स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो जाती हैं। तो दिमाग में आपके स्ट्रक्चर तब बनेंगे जब आप उसके साथ एक ताल्लुक पैदा कर देंगे। तो आपकी जो रीडिंग है मुख्तलिफ यॉनरास की, हाँ यहाँ पर मैं खासतौर पर एम्फेसाइज करना चाहूंगा, एक नहीं मुख्तलिफ यॉनरास के अंदर आपको ड्रामास पढ़ने होंगे, प्ले पढ़ने होंगे, पोइट्री पढ़नी होगी, नॉवेल्स पढ़ने होंगे, कॉलम्स पढ़ने होंगे, क्रिटिक पढ़नी होगी, आर्गुमेंटेटिव आर्टिकल्स आपको पढ़ने होंगे। तो मुख्तलिफ टेस्ट आपको लेने हैं राइटिंग के। ये नहीं है कि सिर्फ स्टोरीज पढ़े जा रहे हैं, सिर्फ नॉवेल्स पढ़े जा रहे हैं, ड्रामा एक अलग जॉनरा है, पोइट्री एक अलग जॉनरा है, ऐसे कॉलम, ये सारे जो असनाफ जिसको उर्दू में कहते हैं असनाफे अदब। तो ये जो असनाफे अदब है, जिसको सिंगुलर जिसका सिन्फ होता है, तो असनाफे अदब के मुख्तलिफ जायके आपको लेने होंगे। उस जायके से आपका मिजाज पैदा होगा और आपको फर्क भी पता चलेगा कि जब ऐसे लिखा जाता है तो उसकी टोन अलग होती है, एक कॉलम की टोन अलग होती है, एक क्रिटिक अगर लिखी जा रही है तो उसका उसकी बिल्कुल टोन अलग होती है, एक एक जो है नॉवल की टोन बिल्कुल अलग होती है। तो लिहाजा आपको मुख्तलिफ टेस्ट, मुख्तलिफ किस्म के खाने आप अपने सामने रखने होंगे, मुख्तलिफ ग़िज़ा आपको लेनी होगी। तो आपको इसमें भी बैलेंस डाइट की, जिस तरह खाने पीने के वक्त हमें बैलेंस डाइट रखनी पड़ती है, इसमें भी आपको अपनी डाइट में बैलेंस रखना होगा कि नहीं एक ही किस्म की आप राइटअप पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, नहीं। आपको अभी से मुख्तलिफ यॉनरास को पढ़ने की आदत डालनी होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एडवाइस एक मतलब एक सजेस्ट करना चाहूंगा, एक सीरीज ओयूपी की बहुत अच्छी एक सीरीज है। अच्छा, यहाँ पर ये आप लोग नोट करना चाहें तो कर लें कि ग्रेडेड रीडर्स को आप पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि जो ग्रेडेड रीडर्स होते हैं उसमें फायदा ये होता है कि लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो स्टेप अप होता है। आमतौर पे कोई अगर आप राइटअप उठा लें तो वो जाहिर सी बात है आपको नहीं पता होगा कि इसमें जो वोकैब आ रही है वो किस हिसाब से आ रही है। लेकिन जो ग्रेडेड होते हैं तो वो स्टेप अप होते हैं, वो आपको स्टेप बाय स्टेप उनके स्ट्रक्चर्स इजी टू कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो 6 लेवल्स के ऊपर, स्टार्टर लेवल 1 2 3 4 5, इन 6 लेवल्स के ऊपर ओयूपी का एक बहुत अच्छा सिलसिला है। ओयूपी चाइना ने बेसिकली इस पे काम किया था, जो कि जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में चल रहा है, प्रोग्रेसिव रीडर सीरीज। तो ओयूपी प्रोग्रेसिव रीडर्स के अंदर बहुत सारी वैरायटी आपके पास है और वो सारे क्लासिकल राइटर्स का उन्होंने काम लिया है और उसको ग्रेडेड रीडर्स की फॉर्म दी है। आप हर स्टेप पे से एक रीडर उठा लें, जैसे आपने स्टार्टर से एक ले लिया, लेवल 1 से ले लिया, 2 3 4 5, हर लेवल से एक आप अपने पास परचेज करके रखें, उसको पढ़ें, तो आपको एक पता चलेगा कि किस तरीके से आपने ऊपर जाना है, लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स किस तरीके से नीचे से ऊपर जाते हैं। ठीक है, इजी टू कॉम्प्लेक्स होते हैं और फिर वैरायटी टेक्स्ट की जो है आपके सामने आएगी। तो ये आप एक रिकमेंडेशन है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो मुख्तलिफ टेस्ट लैंग्वेज के लेने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप ओयूपी का प्रोग्रेसिव रीडर्स की जो सीरीज है, ओयूपी चाइना ने बेसिकली काम किया, इसको आप सामने रखें। अच्छा देखिए, आप आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर और मैं थोड़ी देर में वापस डॉक्टर किरण की तरफ भी आऊंगा ताकि कोई क्वेरी हो तो हम उसको आंसर कर सकें। Another important thing, and this is also one of the qualities of an editor, ये है attention to details। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे डॉक्टर किरण ने भी शुरू में कहा था कि ऐसा नहीं है मतलब बड़ा आसान है और कोई एडिटर बन जाए, ऐसा नहीं होता। कुछ बड़ी अहम चीजें हैं जो किसी प्रोफेशनल में जब पैदा हो जाती है तो फिर वो एडिटर बनता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज ये कि सिर्फ आपने राइटर रीडर नहीं होना है। देखिए, पढ़ने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन क्यों हर रीडर एडिटर नहीं बन पाता, क्यों हर रीडर राइटर नहीं बन पाता? अटेंशन टू डिटेल्स। डिटेल्स यानी उस जो किताब आपके सामने उसके एक एक हिस्से को 360 डिग्री में देखना। आप ये मेरा जुमला याद रख सकते हैं, 360 डिग्री में किताब को देखना, 360 डिग्री में राइटअप को देखना। जो राइटिंग आपके पास है आप उसका एक कोना, दूसरा कोना, नीचे ऊपर, चारों जानिब आपकी नजर होनी चाहिए। पेज नंबर का फॉर्मेट क्या चल रहा है, हेडिंग किस तरह की चल रही है, पैराग्राफ का स्टाइल किस तरह चल रहा है, भाई ये इंडेंट कर दिया, आगे क्यों कर दिया, तो वो क्यों ये सब चीजें चल रही है। चारों तरफ इलस्ट्रेशन है, यानी उस टेक्स्ट के साथ जो तस्वीर बनी है वो तस्वीर किसी खास जगह पर क्यों बनी हुई है, और तस्वीर क्यों बनी है आखिरकार, वो क्या हेल्प आउट कर रही है टेक्स्ट के अंदर। तो एक पूरे पेज को हर एतबार से, हर एंगल में 360 डिग्री के अंदर, इसलिए मैं कहता हूँ पूरी
चारों तरफ दिशाओं के अंदर आपको उसको देखना होगा। ये आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये आम कारी में नहीं होती। एक आम जो रीडर है उसको इससे इतना सरोकार नहीं होता, लेकिन एडिटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ही और शी विल हैव टू व्यू द टेक्स्ट इनटू 360 डिग्री इन ऑल द डायमेंशन, राइट। तो अटेंशन टू डिटेल्स, एक एक चीज की तरफ। इवन ये कि अभी तजुर्बे से मैं बात बता रहा हूँ, डॉक्टर किरण भी बेहतर इस बात को समझती होंगी यकीनन, कि हम बाज दफा ये भी गौर कर रहे होते हैं कि वो जो टेक्स्ट का साइज चल रहा है ना, उसमें से एक ई क्यों बड़ा हो गया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग दैट आई हैव अ गुड डे। अब आई हैव अ गुड डे मैंने लिखा है, तो गुड के साथ जो दो ओ है वो साइज उसका थोड़ा सा बड़ा क्यों हो गया, थोड़ा सा छोटा क्यों हो गया। इवन इसको भी एडिटर को देखना पड़ता है, और ये तभी मुमकिन है जब आपकी तवज्जो डिटेल्स की तरफ होगी। अगर डिटेल्स की तरफ नहीं है, आप सरसरी सरफेस लेवल का जो रीडर है वो कभी एडिटर नहीं बन सकता। आपको इन डेप्थ, बाज दफा तो मुझे ऐसा फील होता था, मैं अपना जरूर बता रहा हूँ, कि जैसे मैं टेक्स्ट के अंदर डूब गया हूँ 12। आई होप डॉक्टर किरण भी इस एक्सपीरियंस से गुजरी होगी। यानी हमें लग रहा होता है कि हम पानी में ऐसे उतर गए, और चारों तरफ हमें पानी पानी में ना हुरूफ नजर आ रहे हैं ऐसे तैरते हुए इधर से उधर, अल्फाज ही अल्फाज होते हैं हमारे इर्द गिर्द, और कुछ भी नहीं होता है। और कुछ भी नहीं होता। मतलब और ऐसी कुछ भी कैफियत आप पे तारी हो जाती है। एग्जैक्टली बिल्कुल चारों बिल्कुल। तरफ आपके यूं इस तरह घूम रहे हैं अल्फाज ना, आप एक अंदर बैठ के चीज बल्कि बात। जी यस यस शकील श्योर मैं मैम। बात करना चाहूंगी आपकी बात पे, क्योंकि आप जो इस वक्त लफ्जों के अल्फाज की बात कर रहे हैं। देखिए किसी भी एडिटिंग में ना, जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई किताब एडिट कर रहे होते हैं, there are two things that we need to keep in our minds. The first is the literature, the content that is there. So editing of the content. और दूसरी चीज which requires editing is the aesthetic appeal of that content. जो एस्थेटिक अपील है वो भी एक Right. एडिटर के लेंस से ही गुजरती है. So we are actually wearing multiple hats while we are editing any document. So that is something that we Sure. all need to keep in our minds. Back to you, Shajil. थैंक यू फॉर कंट्रीब्यूटिंग मैम। अच्छा, अब ये मैं बस अभी बात कर रहा था कि इवन बाज दफा जब इस तरह होता है कि आपको चारों अपने अल्फाज नजर आ रहे होते हैं, तो आपको पता होता है कि आपने ये उठा के यहाँ रखना है, ये उठा के यहाँ रखना है। मतलब आपको पूरी हिसाब किताब से चीज को सेट करके एक रिफाइन पोजीशन में लाना होता है। जैसे कि अभी डॉक्टर किरण ने भी इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने अभी शेयर की इस हवाले से। अच्छा, अब आप आ जाए तीसरी चीज की तरफ। स्किल्स आपको जाहिर सी बातें चाहिए, इसके लिए सिर्फ क्वालिटीज होना जरूरी नहीं है, स्किल्स भी होना जरूरी। तो पहली ऑफ कोर्स बड़ी बुनियादी सी जो स्किल है, आपके पास बेसिक्स ऑफ ग्रामर आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। मतलब बारहा हमने इस तरह देखा, जब हम राइटर्स के काम को चेक करते थे तो मैं फील होता था कि बड़े बुनियादी लैंग्वेज स्ट्रक्चर जो है वो वहां पर उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है ना। तो बेसिक्स जो ग्रामर की बिल्कुल बेसिक्स हैं, इसके लिए अगर आप चाहें तो ये OUP की जो ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर है, आप एक अच्छा रिसोर्स है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम उसके जरिए आप अपने ग्रामर को मजबूत करें, क्योंकि ये इट्स नॉट अबाउट स्पीकिंग ना, इट्स अबाउट राइटिंग। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है। रिटन इंग्लिश में और स्पोकन इंग्लिश में बहुत फर्क है। जाहिर सी बात है, आप बोल सकते हैं अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लिख भी सकते हैं। तो एक अच्छी अंग्रेजी लिखना बहुत डिफरेंट एक किस्म का काम होता है, उसके लिए आपकी ग्रामर बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। तो यहाँ पर महज आप डायरेक्ट मेथड के थ्रू ये सारा काम नहीं कर सकते कि आप अमेरिका में रहने चले गए, इंग्लैंड में रहने चले गए तो आप एडिटर बन गए या आप बेहतरीन। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम रहा। डॉक्टर किरण में एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि इंग्लैंड से एक हमारे दोस्त आए, तो वो एक लफ्ज पे बहस हमारी चल गई, वो Z और S के इस्तेमाल के ऊपर, रिकग्नाइज के अंदर। तो उस पर वो कहते हैं कि भाई मैं इंग्लैंड में रहा हूँ, मैंने तो उस तरह देखा है, मैंने कोई किताब ऐसी नहीं देखी जहाँ पर जो है Z लगा हो वगैरह वगैरह। तो सारी वो बात इस बुनियाद पर हो रही थी कि बुनियादी आर्गुमेंट ये था कि चूंकि मैं इंग्लैंड से आया हूँ तो लिहाजा मैं बेहतर जानता हूँ। तो भाई इंग्लैंड से आना, अमेरिका से आना इस बात की दलील नहीं होती कि आप जो है वो एडिटर अच्छे बन सकते हैं या एडिटिंग के अंदर आप कोई अच्छी क्रिएटिव कर सकते हैं। तो बेसिकली दोनों ऑप्शन सही है, S भी सही है, Z भी सही है, और उसका बेहतरीन जो आपके पास क्राइटेरिया वो खुद OUP की अपनी एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी है, कॉर्पस मौजूद है। दोनों तरफ से आप देख सकते हैं कि Z और S दोनों एक्सेप्टेबल हैं। तो अब वो यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगी आपकी इजाजत से। अभी जब आप लैंग्वेज की बात कर रहे थे कि अंग्रेजी है या उर्दू, लेकिन किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी जबान में लिखने के लिए हमें उसके ऊपर एक उबूर आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं या आप उर्दू में लिख रहे हैं, ग्रामर रूल्स जो है, जैसे अब हम लैंग्वेज रूल्स कहते हैं बेसिकली, और वो इंटीग्रेटेड लैंग्वेज रूल्स पर बात करते हैं। तो जब तक आपका लैंग्वेज और लिटरेचर का इंटीग्रेशन बीट एनी लैंग्वेज वो नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू राइट इफेक्टिवली। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिन किताबों का जिक्र किया जा रहा है वो मुस्तनद किताबें, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आपको एक्सेस नहीं है उन किताबों का तो आप किसी और से नहीं सीख सकते। बेशुमार किताबें हैं जो हमारे एक्सेस में अवेलेबल हैं।
So please, everybody, just ensure that you are picking up something, irrespective of the brand name, I will say. You're picking Sure. up something that is meaningful. You're picking up something which is beneficial. You're picking up something which is user friendly to you. And above everything, you're picking up a resource that is supporting you to learn. तो ये अगर आप एक लेंस पहन के और इस तरह अगर आप इस मटेरियल को रिसोर्सेज को ढूंढेंगे, you will definitely be able to grasp more as compared to the other, right? So, Sure. you want to share your Sure, screen again? sure, Dr. Kiran. Can you see my screen? Yes. All right. या ऑफ कोर्स ये जितनी भी किताबें, बिल्कुल मैं इस बात को एंडोर्स करूंगा, जितनी किताबें ये हमने अपने तजुर्बे की रोशनी में, क्योंकि हमें अगर लगा कि ये अच्छी है किताब, तो एक तजुर्बे की रोशनी में, ऑफ कोर्स यहाँ किसी ब्रांड को प्रमोट करना मकसूद नहीं है। आप चाहें तो किसी और रिलायबल बुक की तरफ भी जा सकते हैं। सिर्फ जो मुझे लगता है कि इनिशियल लेवल पे जो किताबें आपको हेल्प कर सकती हैं, मैं उसको, अब इत्तेफाक ऐसा है कि दोनों नाम ही ओयूपी का आ गए, तो मुमकिन है कि कोई जो है वो सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग, तो नॉट एट ऑल। तो आप कोई भी किताब इसमें देख सकते हैं जो रिलायबल हो, लेकिन आप किसी अच्छे पीयर रिव्यूड बुक कोशिश करें इस्तेमाल करें। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। तो हम बात कर रहे थे कि बेसिक्स ऑफ ग्रामर जो है आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था क्राइटेरिया ये नहीं होता कि आप किसी खास कल्चर में रहकर आए तो चूंकि वहां की वजह से आप कोई पॉइंट निकाल सके, ऐसा नहीं होता। आपको एक क्राइटेरिया चाहिए होता है। तो खुद एडवांस स्टैंडर्ड डिक्शनरी के अंदर वो हम देखते हैं कि दे हैव गिवन द एग्जांपल्स ऑफ बोथ Z and S। तो वो बात पूरी हो गई यहाँ पर। अब हम आते हैं अगली इंपॉर्टेंट चीज की तरफ कि आपको देखिए 3 चीजों पर एज एन एडिटर बहुत ज्यादा तवज्जो देनी होती है। जब आप काम करना शुरू करते हैं कि आपने बुनियादी तौर पे एडिटिंग में काम करना क्या होता है, तो देखिए सबसे पहली चीज है कंसिस्टेंसी। एज एन एडिटर व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी चेकिंग फॉर कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी को चेक करना है। एक जो फ्लो आ रहा होता है राइटिंग का, एक जुमला, दूसरा जुमला, तीसरा जुमला, चौथा जुमला, तो स्ट्रक्चर्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं उसकी कंसिस्टेंसी, ठीक है। जो फॉर्मेट इस्तेमाल हो रहा है लैंग्वेज का, मिसाल के तौर पर अगर आपने यूके वेरिएंट लिया है, अगर आप राइटअप के अंदर यूके इंग्लिश में लिख रहे हैं तो पूरा वो यूके इंग्लिश के अंदर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि बीच में आपने एक यूके स्पेलिंग ले ली, फिर यूएस स्पेलिंग ले ली, फिर कहीं पर जाकर नॉर्थ अमेरिकन ले लिया, ऐसा नहीं है। आपको एक इंटैक्ट रखना होगा। बारहा इसमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो सॉफ्टवेयर के अंदर, खासतौर पे वर्ड में आप लिख रहे हैं तो नहीं पता होता नीचे जो ना यूएस की डिक्शनरी ओपन हुई भी है तो वो रेड दिखा रहा होता है। और वो रेड दिखाने का मकसद ये नहीं होता कि वो गलत है, असल में वो वेरिएंट का प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपने एक वेरिएंट मिसाल के तौर पर आपका यूके में लिख रहे थे तो ऑफकोर्स उसको रेड कर देगा अगर वो यूएस में पीछे चल रहा होगा आपके सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर यूएस डिक्शनरी ऑन हुई भी होगी तो यूके को वो रेड कर देगा। तो वो रेड असल में गलत नहीं होता, वो वेरिएंट का प्रॉब्लम होता है। तो आपको मेक श्योर करना होता है कि आपने एक ही वेरिएंट चूज करना है, या तो यूके लेना है, या यूएस लेना है, या नॉर्थ अमेरिकन लेना है। एक ले और उसको कंसिस्टेंट रख के पहले पेज से लेकर किताब के आखिरी पेज तक। तो ये आपको स्किल पैदा करने के लिए आपको फर्क पता होना चाहिए। जब तक कि आपको यूके यूएस का और वेरिएंट्स का फर्क नहीं पता होगा, जब तक आप ये सीखेंगे नहीं, तब तक आप ये काम नहीं कर सकते। लिहाजा ये एक और चीज आपको सीखनी पड़ेगी एज एन एडिटर कि यूके वेरिएंट क्या है, यूएस वेरिएंट क्या है, ये फर्क आपको पहचानना पड़ेगा। ये फर्क पहचाने बगैर आप गलती नहीं पकड़ सकते इस हवाले से। दूसरी चीज जो आपको एज एन एडिटर मेंटेन करनी होती है, देखिए एडिटर करता क्या है बुनियादी तौर पे। एडिटर जो है वो किसी और की इमारत पर अपनी इमारत खड़ी करता है। एडिटर की अपनी कोई इमारत नहीं होती। मतलब मैं सारा का सारा काम किसी और के काम पे कर रहा हूँ। राइटर का रॉ मटेरियल होता है। राइटर ने एक काम प्रोड्यूस किया, एक लिख कर वो लेकर आ गए रॉ फॉर्म के अंदर, मैंने उसको बड़ा सजाना है, संवारना है और बेहतरीन करके प्रेजेंटेबल बनाना है। तो चूंकि मैं किसी और के काम पे काम कर रहा हूँ, लिहाजा उसके अंदर मुझे देखना है कि उसमें कोहेरेंस है या नहीं है। कोहेरेंस का मतलब होता है रब्त, एक कनेक्टिविटी होना राइटिंग के अंदर। मिसाल के तौर पर एक बात हुई है, एक जुमला है, तो अगले जुमले का उससे रब्त हो, फिर उसका तीसरे जुमले से रब्त हो, फिर उसका चौथे, और फिर ये पूरा पैराग्राफ आपस में एक कनेक्शन रखता हो, फिर ये 4 पैराग्राफ मिलकर आपस में एक रब्त रखते हो। तो राइटिंग में कनेक्टिविटी को इंश्योर करना एडिटर का काम होता है। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही होती है तो एडिटर अपनी स्किल्स के जरिए से उन जुमलों को चेंज करके, उनके लफ्जों को चेंज करके, उनकी तरकीब को चेंज करके, बाज़ दफा ऑर्डर को भी चेंज करना पड़ जाता है एडिटर को। राइटर ने अपने ऑर्डर में, मुझे याद पड़ता है मैंने एक आर्टिकल लिखा था इंडियन मैगजीन के लिए, यूटोपिया ऑफ द अनट्रेन्ड माइंड के नाम से। वो ऑनलाइन वेबसाइट पे मौजूद है, इंडियन मैगजीन है, द टीचर प्लस के नाम से। तो अभी भी ऑनलाइन मेरा आर्टिकल मौजूद है, आप लोग पढ़ सकते हैं जाके। तो मुझे याद पड़ता है मेरा जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था उसमें कुछ जुमलों की तरतीब अलग थी, लेकिन जो एडिट होके आया उसमें तरतीब बदल गई। तो उन्होंने मुझसे
कॉन्सेंट लिया कि भाई आप इस पे एग्री करते हैं, आपको ये एडिटिंग से आप एग्री हैं, आपको तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपकी बात गलत अंदाज से हमने पेश कर दी है, तो मैंने एग्री किया तो उन्होंने उसको प्रिंट किया, तो बारहा आपको ऑर्डर भी चेंज करना पड़ता था। अब ये क्यों कैसे होगा? अब फिर सवाल पैदा होता है कैसे होगा? इस सूरत में होगा जब आपको रीडिंग की आदत होगी, जब आप अच्छी अच्छी किताबें अच्छे रिलायबल पब्लिशर्स की पढ़ेंगे, तो किताबें एडिटेड हुई भी होती है, उनकी राइटिंग पढ़ते पढ़ते आपके अंदर खुद ये मिजाज पैदा हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कनेक्शन नहीं है इस राइटिंग में। यानी आप में लेंस उस वक्त पैदा होगा जब आप मुताले का एक्सपीरियंस से गुजरे हुए हैं। अगर आप बहुत सारी किताबें पढ़ चुके हैं, जैसे आपने अगर 10-20 किताबें अच्छे इंटरनेशनल पब्लिशर्स की पढ़ ली है ना, तो उनको पढ़ने के बाद अब आप किसी खराब राइटिंग को पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम खुद ब खुद नजर आ जाएगी। खुद ब खुद आपको पता चलेगा कि यार मैंने आज 10 किताबें पढ़ी हैं, अब ये मैं जो 11वीं चीज पढ़ रहा हूँ उसके अंदर वाकई लग रहा है कि कनेक्शन नहीं बन रहा चीजों में। तो आपको ये कैसे हेल्प आउट, क्या चीज हेल्प आउट कर रही है? आपकी रीडिंग। रीडिंग जितनी आपकी ज्यादा होगी, जितनी भरपूर होगी, ऑटोमेटिकली आप कोहेरेंस को स्पॉट आउट कर सकेंगे, वरना आप स्पॉट नहीं कर सकते कि कोहेरेंस है या नहीं है। आपका दिल बोलेगा, ये हम अपने तजुर्बे से बता रहे हैं, हमारा दिल कहता है जब हम एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ पढ़ते हैं, इसमें कनेक्शन नहीं बन पा रहा, राइटिंग कनेक्टिविटी बन नहीं पा रही, वो फौरन से आप पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी, कोहेरेंस, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है प्रिसिशन। आपको राइटअप को प्रिसाइज करना होता है, यानी तवील ना हो, मुख्तसर जुमले के अंदर बात पूरी जाए। ऐसा नहीं है कि वो जो नंबर ऑफ वर्ड्स आपके जुमले के अंदर है वो चना 50-60 हो गए, नहीं, आपके वो 10 होंगे, 10 या 12 होंगे, लेकिन वो 40-50 की मीनिंग दे रहे होंगे। तो बाज़ दफ़ा एडिटर के पास इस तरह भी राइटिंग्स आती हैं कि वो जुमले इतने तवील होते हैं, इतनी तवारत उनकी ज़्यादा होती है कि वो राइटिंग की सूरत ख़राब हो रही होती है। लिहाजा उन जुमलों को आपको छोटा करना होता है, कंसाइज करना होता है, प्रिसाइज करना होता है। उसके बाद जाकर वो क्या होता है कि कम जुमलों के अंदर भी, कम लफ्जों के अंदर भी मीनिंग पूरी आ रही हो। ठीक हो गया? तो इसके लिए आपको प्रिसाइज करने के लिए ऑफ कोर्स कंप्रीहेंशन की प्रैक्टिस करनी होती है, और कंप्रीहेंशन की एक्टिविटीज जितनी ज्यादा आप करेंगे उतनी ज्यादा आपके अंदर टेक्स्ट को प्रिसाइज करने की जो एबिलिटी है वो पैदा होगी। तो मैं समझता हूँ और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन 3 चीजें तो एडिटर के लिए लाजमी है कि वो कंसिस्टेंसी को पकड़ेंगे, कोहेरेंस को मेंटेन करेंगे और प्रिसिशन को मेंटेन करेंगे। अच्छा, लैंग्वेज वेरिएंट्स की मैंने अभी आपके सामने बात की है कि लैंग्वेज वेरिएंट्स को आपको समझना बहुत जरूरी है कि यूके स्पेलिंग्स कितनी है, वो कम से कम सारा आप नहीं कर सकते, मेजर आपको वोकैबुलरी बनानी पड़ेगी कि यूके और यूएस की जो मेन डिफरेंसेस हैं स्पेलिंग्स के वो क्या है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप भी देता चलूँ, कोई सी प्रॉब्लम की बात नहीं होती। अगर आपको किसी वर्ड में लगता है कि यार ये मुझे नहीं लग रहा कि ये यूके का है या यूएस का है, आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो आप डायरेक्ट जो एडवांस अंडर डिक्शनरी है, चाहे वो कैम्ब्रिज की हो, चाहे लॉन्गमन की हो, पीटरसन की हो या ऑक्सफोर्ड की हो, कहीं भी आप करें, वहां पर एडवांस डिक्शनरीज के अंदर खासतौर पे अच्छी बात होती है, वो आपको बता देते हैं कि ये वेरिएंट कौन सा है। इवन बाज दफा वेरिएंट सेकंड थर्ड फॉर्म के अंदर भी होता है, सेकंड थर्ड फॉर्म के अंदर भी आपको वेरिएंट वहां भी पता चल जाता है कि यार सेकंड थर्ड फॉर्म के अंदर भी चेंज आ रही है। इस वेरिएंट के अंदर ईडी लग रहा है, किसी में टी लग रहा है, जैसे लर्न या लर्नेड ईडी के साथ या टी के साथ आ रहा है, तो आपको सेकंड थर्ड फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल के अंदर भी बाज दफा वेरिएंट पता चल जाता है। तो उसका आसान तरीका ये है कि आप वर्ड डालें और एडवांस एडिशंस के थ्रू चेक कर लें कि वो वेरिएंट कौन सा है आपके पास। अच्छा, अब आखिरी इसके बाद एक पॉइंट और है, फिर मैं चाहूंगा कि मैं डॉक्टर किरण के पास वापस आऊं, या इस दौरान अगर डॉक्टर किरण आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, क्वेश्चंस तो नहीं है, बस मैं ये कहना चाह रही थी कि वी आर लेफ्ट विद ओनली 5 to 10 more minutes, so if you just try to wrap it up ताकि फिर हम क्वेश्चंस पे आए। हाँ, मैं रैप अप कर लेता हूँ ताकि हमारी बात कोई रह ना जाए, फिर हम सवाल की तरफ आ जाए। बिल्कुल, आप टेक योर टाइम, 5 minutes। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। अच्छा, अब ये 3 चीजें आखिर में और समझ लें, अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉलोकेशन। देखिए, कॉलोकेशन ये क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लफ्ज आपस में एक साथ कौन से फिट होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना हैव अ गुड डे, तो भाई हैव अ गुड डे हमने कहा है, तो हैव अ गुड डे क्यों कहा, टेक अ गुड डे क्यों कह दिया, ठीक है, डू अ गुड डे क्यों नहीं कह दिया, हैव अ गुड डे। अ गुड डे के साथ हैव, ये एक नेचुरल इसके साथ है सेटिंग, ये इस तरह ही जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने एक नाउन लिया तो उसके साथ सूटेबल एडजेक्टिव क्या होगा, अगर आपने एक वर्ब लिया तो सूटेबल एडवर्ब लिया, अपने पास से नहीं। जैसे हम कहते हैं लॉन्ग रूट, तो अब लॉन्ग रूट, लॉन्ग ही क्यों कहा, ठीक है, टॉल रूट क्यों नहीं कह दिया मैंने, और टॉल रूट कह दूं मैं, नहीं, लॉन्ग रूट। तो भाई रूट के साथ लॉन्ग जो है वो उसका सूटेबल जो एडजेक्टिव है वो है।
तो लिहाजा सूटेबल एडजेक्टिव की अंडरस्टैंडिंग, सूटेबल एडवर्ब की, ये कोलोकेशन की अंडरस्टैंडिंग कहलाती है। उसको हम कहते हैं वर्ड्स दैट गो टुगेदर नेचुरली। और ये भी कब होगा? ये तब होगा जब आपका अच्छे जो राइटर्स होते हैं, जो अच्छी पब्लिकेशंस हैं, उसको आप पढ़ रहे होते हैं। जो ऑथेंटिक पब्लिशर्स की किताबें होती हैं वो आप पढ़ते हैं, तो पढ़ते 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 आपकी खुद एक आदत बन जाती है कि यार मैंने तो इसी तरीके से पढ़ता हुआ मैंने लिखा हुआ देखा है। तो इस तरीके से रीडिंग की हैबिट आपको यहाँ भी हेल्प करती है कि आपकी क्वालिफिकेशंस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। और अगर इसमें आप मजीद काम करना चाहें तो आप खुद वो वर्ड आप डालकर किसी रिलायबल डिक्शनरी में चेक कर सकते हैं कि उसके साथ सुटेबल कोलोकेशन क्या होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक एडिटर के लिए। अगली जो सेकंड लास्ट बात है वो EFL कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ पर मैं, ये इंपॉर्टेंट बात है जो आप सबको याद रखनी चाहिए। हम पाकिस्तानी हो, UAE में रहने वाले लोग हो, या किसी और कंट्री में हो, जो कि बुनियादी तौर पे हम अंग्रेज नहीं है, जाहिर सी बात है, एंड वी आर नॉट ब्रिटिशर्स और अमेरिकन। तो हमारा जितना भी कॉन्टेक्स्ट है, हम सेकंड लैंग्वेज यूजर्स हैं, सेकंड और थर्ड या किसी और फॉर्म में आप करें। तो हम फॉरेन लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश को यूज करते हैं, सेकंड लैंग्वेज के तौर पे यूज करते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हमारे यहाँ कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो शुरू से गलत ही हम लोग लिखते आ रहे हैं, ठीक है, वो हमारी प्रॉब्लम है। और ये EFL की जो गलतियां हैं, ये भी एडिटर को पता होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर एक मैं आपके साथ एग्जांपल रखता हूं। हम कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट आई हैव लर्न थ्रू आउट माई लाइफ। तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स होगा एस के साथ, ये नहीं होगा वन ऑफ द बेस्ट थिंग सिंगुलर के साथ, ठीक है। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम अक्सर लोग लिख देते। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद एक पियर्सन की एक बुक मुझे याद पड़ता है, मैंने उसमें एक बाकायदा इस पे चैप्टर था EFL की जो प्रॉब्लम्स है, उसमें उन्होंने एग्जांपल दी थी किस तरह लोग लिखते हैं जो एशिया में रहने वाले। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, हालांकि वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स है वो एस, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये सिंगुलर है। और भाई बात ये है कि प्रॉब्लम्स प्लूरल, उसमें से एक प्रॉब्लम, अगर आप इसको इस तरह नहीं समझे वन ऑफ द, तो वो तो प्लूरल है ना, उसमें से एक आपकी बात कर रहे हैं, तो इसलिए वहां पर ऐसा आएगा। लिहाजा इस तरह की बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो EFL के जो यूजर्स हैं, इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज यूजर्स हैं, वो करते हैं। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो गाइड्स होती हैं, एडिटर्स गाइड्स होती हैं, वहाँ पर बाकायदा इसके चैप्टर्स होते हैं। और मैं एक यहाँ रेफरेंस भी आखिर में दे दूंगा आपको, अगर आप मजीद को पढ़ना चाहते हैं आप, क्योंकि अभी जितनी मैंने आपके वादे सामने रखी हैं, ये तो महज तजुर्बे की बुनियाद पर जो हमने सीखा है और तजुर्बे से सामने आया वो मैंने रखी है। लेकिन बाकायदा इस पर आप पढ़ना भी चाहते हैं तो मैं एक बुक भी आपको आखिर में अभी रेफर कर देता हूँ। आखिरी चीज है कॉपस। कॉपस क्या होता है असल में? कॉपस लैंग्वेज जो यूज होती है, जो खुद अहले जबान इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, अमेरिकन हो, या वो दूसरे हो, जो अहले जबान है, जो इंग्लिश बोलते हैं, नेटिव यूजर्स हैं इंग्लिश के, उनके जो लैंग्वेज के जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो जो लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, वो एक जगह महफूज की जाती है, ठीक है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसे अपडेट किया जाता है। तो ये कॉर्पस बाकायदा UK का भी मौजूद है, US का भी मौजूद है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो कि भाई मैंने ये लफ्ज लिखा है, इसके साथ ये सूटेबल जा रहा है नहीं जा रहा है, तो आप कॉर्पस पे डालकर उसको चेक कर सकते हैं। UK कॉर्पस BNC के नाम से, BNC कॉर्पस देख लें आप, फ्री है, वहां पर जाके देख सकते हैं। इस तरह US का एक कॉर्पस है, कॉर्पस ऑफ कंटेम्पररी अमेरिकन इंग्लिश के नाम से, उस पर आप जा सकते हैं। तो ये दोनों ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है, UK कॉर्पस, US कॉर्पस, वहां पे भी जाकर आप अपने स्ट्रक्चर्स को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आखिर में ये आपको मैं टेक्स्ट बुक का हवाला भी दे रहा हूँ, ये आप लोग एक रेफरेंस बुक है, द एडिटर्स कंपेनियन, स्टीव डनहैम की। ये आप चाहे तो नोट कर लें, अमेजोन का लिंक भी यहाँ पर मौजूद है, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, वो आप शेयर भी कर देंगी। बहरहाल ये किताब बड़ी मशहूर है, द एडिटर्स कंपेनियन, ये आप नोट कर लें, स्टीव डनहैम की, अमेजोन पे अवेलेबल है, आप चाहे इसको मंगवा सकते हैं। तो ये आपको काफी हेल्प करेगी इसके अंदर मजीद, अगर आप इसमें आगे जाना चाहते हैं। अच्छा, आखिर में एक बस चीज में क्लियर कर दूं यहाँ पर कि देखिए, एक प्रूफ रीडिंग होती है और एक एडिटिंग होती है। अब बाज़ दफा इसको हम कंफ्यूज कर देते हैं। प्रूफ रीडिंग का बुनियादी तौर पे जो काम होता है वो होता है कि राइटर को एरर फ्री बनाना इन टर्म्स ऑफ स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड अदर एस्पेक्ट्स, लाइक कुछ पेज नंबर्स की कंसिस्टेंसी वगैरह वगैरह चीजों को ओके करना। तो बुनियादी तौर पे प्रूफ रीडर का काम जो होता है वो अगलात को दुरुस्त करना होता है, यानी आखिरी स्टेज के ऊपर फाइनली ये देखना कि स्पेलिंग का कोई प्रॉब्लम न रह जाए, पंक्चुएशन का कोई प्रॉब्लम न रहे, पेज नंबर गलत ना हो जाए, उसकी इनकंसिस्टेंसी ना हो जाए। तो ये एक लिमिटेड रोल होता है। एडिटर का रोल इससे बड़ा है क्योंकि उसको ओवरऑल पूरे राइटअप को, उसकी क्वालिटी को इनहेंस करना होता है। उसमें उसका डिजाइन भी शामिल है, उसकी तस्वीरें भी शामिल हैं, राइटअप के पैराग्राफ्स भी शामिल हैं, हेडिंग्स भी शामिल है, ईच एंड एवरीथिंग। यानी एडिटर का जो काम है वो बहुत बड़ा काम होता है। प्रूफ रीडिंग उसकी एक स्टेज होता है जो बिल्कुल आखिर के अंदर आपको पंक्चुएशन, स्पेलिंग वगैरह और बहुत मुख्तसर सी चीजें आपको देखकर उसको ओके करना होता है। तो ये दोनों अलग अलग जॉब्स हैं। बाज दफा एक भी कर रहे होते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि अलग अलग ही कह रहे हैं। एडिटर का काम
ओवरऑल राइटअप के को इनहेंस करना है, और प्रूफ रीडर का जो काम है वो स्पेलिंग्स के एरर्स को, टाइप एरर्स को पकड़ना होता है। तो ये फर्क भी हमारे ज़हन में रहना चाहिए, लेकिन ये दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं। तो यहाँ मैं अपनी बात को एंड करता हूँ, और मैं अब जाऊँगा ओवर टू डॉक्टर किरण। थैंक यू। राइट, थैंक यू शर्जील। आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दें सो दैट वी कैन सी यू। थैंक यू सो मच। सो शर्जील इज हियर विद अस, और आई मस्ट से शर्जील आपने बहुत स्पेसिफिक एरियाज को पिक करके बात की, एंड द chat box is full of appraises, mashallah se. So over to the audience who are listening to us. Please share your questions, your concerns, so that we can ask Sharjeel to answer. अभी Sure. तक जो ज़्यादातर पॉइंट शर्जील ने शेयर किए वो एडिटिंग से रिलेटेड ही किए। प्लीज मैं एक बात यहाँ ऐड करना चाहूंगी, एडिटिंग इज नॉट ओनली फॉर अ बुक, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू डूइंग इट फॉर अ बुक। आपके अपने असाइनमेंट्स एज स्टूडेंट्स हमें उनकी एडिटिंग करनी होती है। हमारे अपने, जैसे शुरू में शर्जील ने कहा था कि एज टीचर्स हमारे अपने प्लान्स, हम अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। इफ वी आर इन द मैनेजमेंट or administration of an educational institution, we have to submit proper fortnight reports to our heads. Writing of the reports needs editing. If we are studying in research capacities, okay. So if you are working as a subject special, sorry, what was I saying? As researchers or students MPhil PhD program के, तो हमारी thesis that also requires a lot of editing. फिर जब हम पेपर्स लिखते हैं रिसर्च के लिए, उसकी एडिटिंग, आप एक छोटे से छोटा राइटअप भी अगर लिखते हैं तो एडिटिंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड। एंड प्लीज रिमेंबर एवरीबॉडी, एडिटिंग इज अ स्किल, इट इज टू बी पॉलिश्ड। इसके प्रोसेसेस हैं जिसकी बेसिस पे जाके हम सीखते हैं, ओवरनाइट हम एडिटिंग नहीं सीख सकते। सो कुछ कमेंट्स आए हैं यहाँ पे शर्जील दैट आई वांट टू शेयर विद यू ऑल। ओके, सो एक अतिया ने ये क्वेश्चन पूछा है, इफ यू कुड आंसर, एंडिंग करवाना जरूरी है या इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट का? एंडिंग करवाना जी जी शर्जील, थोड़ा अगर आप इनकी बात को समझ पाई हैं तो मुझे बताएं, ताकि मैं फिर एक्सप्लेन करूं। मैं जहाँ तक इस बात की बात कर रही थी, जब अभी आप लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे ना, ईएफएल कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे थे, और आप अभी कॉर्पस की कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, आप स्टेटमेंट्स की कॉन्टेक्स्ट में, तो ये सवाल उसी से रिलेटेड है कि जब हम एक असाइनमेंट को या एक राइटअप को, एक सिंपल राइटिंग को जब हम कंक्लूड करते हैं तो हमारा लेंस कौन सा होता है? दिस इज व्हाट अतिया इज ट्राइंग टू क्वेश्चन। श्योर। देखिए, जब आप राइटअप अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस वक्त में तो चूंकि एज अ राइटर आपकी स्किल वहां पर नजर आ रही होती है। राइटअप को पूरा करने के बाद आपको फिर उसको एक एडिटर के लेंस से देखना होता है। यानी आप ये समझ लीजिए जो आपके सामने राइटअप, सॉरी शर्जील, सवाल अतिया का ये है कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का एडिटिंग करवाना जरूरी है या लैंग्वेज एक्सपर्ट का? सवाल ये है इनका। देखिए, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का भी जो भी राइटअप प्रोड्यूस होगा, ऑफ कोर्स उसकी एडिटिंग होनी चाहिए, लेकिन लैंग्वेज एक्सपर्ट को भी करवा लेनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, वी शुड हैव अ पेयर ऑफ आइज। द पेयर ऑफ आइज वाली जो बात है वो डॉक्टर किरण आए वो बिल्कुल उसको समझती हैं। पेयर ऑफ आइज का बुनियादी कॉन्सेप्ट है एडिटिंग के अंदर कि वो आपकी अपनी आंखें नहीं है। लैंग्वेज एक्सपर्ट खुद तो है, लेकिन मैं खुद भी एडिटर हूँ, लेकिन मैं भी अपना राइटअप जब मैं बनाता हूँ तो फिर उसको किसी और से एडिट करवाऊंगा। नजर से गुजारना जरूरी है। Different pair of eyes. This is the main justification behind editing. So एक question ये है कि sir, can you please name some of the books related to editing? Nauzad, we have just shared one book जो मैंने लिखा दी है यहाँ पे, The Editor's Companion. Otherwise, a number of other books are also available. There are some short write-ups also available. There are many books which are available that you can use, user-friendly, simple, and they're not very expensive as well. But और ये बिगनर्स के लिए अच्छी रहेगी एडिटर्स कंपेनियन, अगर ये इसको यूज करें तो बहुत। एडिटर्स कंपेनियन है, you can use that. It's easily available. और ये आपको सब में हेल्प करेगी डॉक्टर किरण, ये सब में है, यानी आपके मैगजीन्स के लिए भी है, ऑनलाइन राइटअप्स के लिए भी है, सबके लिए। मेरे पास भी ये बुक है, इसलिए बता रही हूँ कि आई हैड दिस बुक। तो ये आपको सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगी, ये हार्ड में भी। और दिस इज बेसिकली फॉर नोविस एडिटर्स, पीपल हु आर स्टेपिंग इनटू द फील्ड ऑफ एडिटिंग। दिस बुक एक्चुअली सपोर्ट्स यू टू लर्न, राइट? जब ये होगा तो फिर आपको एडवांस लेवल की किताबें इंशाल्लाह जरूर बताई जाएंगी। लेकिन जी यस डॉक्टर किरण, मैं एक चीज़ बस आपकी बात से मुझे याद आई कि मुझे याद आ रहा था कि कई बार आपने भी देखा होगा कि हमारे स्टूडेंट्स जब एमफिल लेवल पे हायर एजुकेशन की तरफ अब जाते हैं तो यकीन जाने कई बार उनके वो प्रपोजल, मतलब वो बड़ा इनिशियल लेवल का, वो भी रिजेक्ट हो जाता है। वजह यही है कि वो राइटिंग की क्वालिटी बिल्कुल पुअर होती है और वो बिल्कुल इस लेवल पे नहीं होती है कि आप अपनी बात, अपना माफिज ज़मीर सही से बयान नहीं कर पा रहे होते। तो ऑफ कोर्स आपको हायर एजुकेशन लेवल्स के ऊपर, मास्टर्स और उसके ऊपर आप जाना शुरू करेंगे तो हर जगह आपकी पहचान आपके
राइटअप से होती है, तो आपको ये स्किल वहां भी उतना ही हेल्प आउट करेंगे जितना हमें जॉब में करके। चलिए थोड़ा सा कमेंट शेयर कर रही हूँ। शेरबानो, थैंक यू आपा, शीज़ा आपा। बेहतरीन मालूमात, आज का सेशन मिस होगा तो बहुत अफसोस होगा। प्लीज मेरे सेशन अटेंड किया कीजिए। मैं सबसे कह रही हूँ कि माई फोकस इज टू डेवलप स्किल फॉर इंग्लिश, ये मेरा फोकस है। दिस इज व्हाट और ये पेज को भी जरूर लाइक करें, स्किलर्स एजुकेशन कंसल्टेंट। ये प्रमोशन हो रही है। अच्छा जी, हार्ड टाइपिंग सेशन, ये भी हमारी स्टूडेंट है थैंक यू। एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, और इनका नाम है जमुरत। माशाल्लाह माशाल्लाह। जमुरत है ये हमारी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, और एक कमेंट यहाँ से आया है which is congrats, थैंक Dr. यू। Munir, thank you very much. I think we have come to the end of the session. If there are no more questions, let me just say uh, bye to everybody. थैंक यू डॉक्टर मुनीर। Thank you, Shajji, for taking out time. It was extremely informative, very insightful. I would love to have you again so that if people would like to श्योर learn more about editing, क्योंकि ये श्योर skill श्योर इंशाल्लाह। नहीं सिखाई जाती, which is the truth. हम नहीं बेशक सिखाते ऐसा और हमारे पास नहीं है अपॉर्चुनिटीज। जिनके पास होती है वो भी नहीं सिखाते ऑफ कोर्स। जो उनके पास होती है वो भी नहीं सिखाते। तो मैं जरूर चाहूंगी कि अगर हम इस पे काम करें टुगेदर एज अ टीम, एंड इफ यू कुड हेल्प राइट एस्पायरिंग पीपल who would like to इंशाल्लाह। be editors in future, or maybe for their own benefit, if you would like to work, श्योर that would be great, that would be ideal. श्योर। So with this, thank you Shadeel again, इट्स and माय प्लेजर everybody, मैम, थैंक यू। I'll take your leave. As I always say at the end, please everybody stay happy, spread positivity around, and just try to make lives easier for each other. Thank you very much, and with this, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।